For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today we are going to learn about that how can we find the derivative of a function at a given point in very short way. इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, वहाँ से आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देख लिया था। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी, और उनमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक्स हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव जो आप पहले से भी जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, trigonometric and inverse trigonometric, and differentiation by substitution. So first of all, I would like to clear that what is the derivative of function fx at a point A. Suppose you want to find, let y is equal to fx be a given function, be any given function, then derivative of fx, then derivative of fx at a point A will equal to the slope, at the point A. उस पॉइंट पर जो कर्व हमारा है, उस कर्व के उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, इट विल इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कर्व इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ये है आपके पास एक कर्व है, यू वांट्स टू फाइंड द डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट ए, सपोज दिस इज द कर्व fx, you want to find the derivative at this point. So this is point A, we will find out the slope of this curve at this point, that is at x is equal to 0, and it will define the derivative. So the derivative of this curve dy by dx at x is equal to x naught. Okay, slope means this quantity represent slope, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं फिजिक्स में बहुत बार आपने देखा है, ठीक है। तो ये जो स्लोप होगा यही इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू सम डायरेक्ट फॉर्मूला विच वी विल यूज इन solution of the exercise directly without any proof and without any geometrical representation. For example, the second point is that derivative of a standard function, okay. So first of all, derivative of a standard function, standard function. So guys, it's very easy and it is very helpful also. If you want to find the derivative of d by dx x power n, where n belongs to any real number, it will equal to n x power n plus 1, and x power n minus 1. And one thing I would like to tell you, it's very important, we will not leave this x as, again we will differentiate, this is called chain rule, but it is important now to explain because many times student got here 2x की पावर 5 और वो डिफरेंशिएट करके 5 आगे लाते हैं, 2x की पावर 4 लिखकर छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 10 इंटू 2x की पावर 5 बिकॉज 2x का डिफरेंशिएशन 2 बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, कंसिडर दिस एज x पावर 7 by 3. We can take any value of n which is real. So from here this becomes 7 upon 3 x power 7 upon 3 minus 1, and again you will differentiate this
So this will give result 1. वो हमेशा 1 result देगा because x power is 1 and when you will differentiate by using this formula you will get 1 x की power 1 minus 1 that is 0 and everyone know about it that any quantity power equal to 0 will give equal to 1. So in this way we can say that 7 upon 3 and this become 4 upon 3. It's our answer. So guys, we can use this as a standard function, as a standard formula to find out the derivative of different functions which is in the form of x की power n. Now I'm going to talk about that some other formula related to the derivative like as the exponential. ये एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप इसको करते रहो डिफरेंशिएट। जैसे कि आप देखोगे अभी द सेकंड वन इज दैट एक्सपोनेंशियल, इन द केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इट विल ऑलवेज इक्वल टू ई पावर एक्स, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा, कुछ भी करो इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हियर यू विल गेट नॉट एनी चेंज। Then and after that this one is a, this one is b, d by dx of a power x it will equal to a power x log a, and again d by dx of logarithmic function d by dx of log x, student it you will get 1 by x. So in this way you can use all these formulas also. For example, suppose you want to check the application of this formula, you have a function like y is equal to 3 power x, you want to find the derivative of this function. So what you will do, dy by dx will equal to what, 3 power x log 3, इट्स योर आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं, अगर आपको ये जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं अगर आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स, आप कोई भी फंक्शन बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जब भी डेरिवेटिव से पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीखा, कॉन्टिन्यूटी देखा, लिमिट को फाइंड आउट करना सीखा और किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना भी सीखा। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन IIT JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो वी शुड नो दैट हाउ कैन वी गेट द आंसर easily in very less time. So it is very important guys. One thing, when you are the board aspirant, if you are the board aspirant, so in the course you will see first of all that what is the given in the question, that it is by first principle or nothing is given. So whenever you will get the question that find the derivative of the function by first principle, you cannot use all these formula, you can use only the first principle. But in case if nothing is given, only find the derivative of this, so you will use only these formulas because they will take less time in comparison of the first principle. Now we are going to talk about that what is the differentiation, what is the derivative of the trigonometric function. Guys, you know very well that there are 6 trigonometric functions and they have also derivative, and let's see the third one is that इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम देखेंगे, वो क्या होता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ टी फंक्शंस के डेरिवेटिव देखने वाले हैं। एंड व्हाट इट विल, फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स वो ये आती है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ पर ये पता नहीं चल पाता, मतलब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, बट हमको याद इतना नहीं रह जाता कि किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा। फंक्शंस याद रहते हैं कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, बट ये बात हमारे दिमाग से निकल जाती है कि नेगेटिव कहाँ था पॉजिटिव कहाँ था। टुडे आई विल गिव यू वन ट्रिक, बाय दैट ट्रिक यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव द नेगेटिव रिजल्ट एंड विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन have the positive result. So d by dx and d by dx of cos x, this is d by dx of sin x, this is tan x, d by dx of cot x and d by dx of sec x and d by dx of cosec x, d by dx of cosec x. So one thing I would like to tell you before going to start that what will
this will equal to what? Just I want to tell you, first of all, observe in how many functions there are C in a starting. So you will find out C. This is C and this is C. जिन भी फंक्शंस के स्टार्टिंग में C है उनके रिजल्ट्स माइनस आएंगे. दैट्स इट. उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे? माइनस आएंगे. प्रॉब्लम सॉल्व. माइनस प्लस का मसला सॉल्व. अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप बस अपने दिमाग में एक बात रखिए कि जिस भी फंक्शन के स्टार्टिंग में C आ रहा है, like as cos, cot, cosec, they will give negative result, and other than these rest will give positive result. For example, d by dx of sin x will equal to what? Cos x. d by dx of cos x will equal to minus sin x. d by dx of tan equal to sec square. This is minus cosec square, and it will sec x tan x. And what is cosec x and cot x? So it was the derivative of the trigonometric functions. ये याद सबको रहता है. माइनस प्लस की प्रॉब्लम आती है, वो आज से खत्म हो गई. ठीक है बच्चों, तो हमने आपको यहाँ तक की चीज़ें समझा दी हैं. अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे डिस्कस करेंगे, वो क्या होंगे. एंड द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इट, and I am going to teach you that what is the derivative of the inverse trigonometric functions and how can we find the derivative of the given function by using trigonometric substitution. ट्रिग्नोमेट्री को सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं, ये हमारा इसी में अभी हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं, हम आपको ये समझाने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो आप इसको कंप्लीट करें. मैं आपको बताता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, we are going to know that what is the derivative of the inverse trigonometric functions. trigonometric functions के derivative को हमने समझ लिया. inverse trigonometric functions के derivative को भी हम समझेंगे और वो भी बहुत easy है. फॉर्मूले हमको सारे याद रखने हैं क्योंकि विदाउट फॉर्मूला हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और हमने समझ भी लिया है. आई नो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया समझ पा रहे हैं आप, लेकिन आप सभी फॉर्मूलों का प्रूफ कब तक करते रहेंगे. एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, ना कि एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करें फिर उसका यूज़ करें. ऐसा नहीं है. बस आपको डायरेक्ट आप जहां पे हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए. पीछे से लेकर आएंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस का टाइम और चला जाएगा. बिकॉज यू नो डेरिवेशन इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड. हमेशा डेरिवेशन ईजी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होता ही है. सो गाइज, यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. आपको तो फॉर्मूला बिल्कुल याद ही रखना होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव मैं लिखूंगा. प्रॉब्लम 1 मैंने आपकी सॉल्व कर दी है. नेगेटिव पॉजिटिव का केस मैनेज हो चुका है. नाउ लेट्स सी. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. एवरीवन नो अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज इट इज अवर सेकंड चैप्टर इन क्लास 12. तो आपने उसको पढ़ के रखा है, ईजी भी है, आपने उसमें एंजॉय भी किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया है. तो अब हम आज उसके डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ ऑल दीज, जस्ट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला एंड यू विल यूज. ठीक है, आप उसका यूज करेंगे. ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एंड सेम हियर, यहाँ पर भी हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स. बच्चों, आप यहाँ तक की बातें बिल्कुल आपको क्लियर हैं. सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव को मैनेज कर लेते हैं. जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव को क्या मैनेज करेंगे, जहाँ पर C है वहाँ पर नेगेटिव आएगा. जहाँ पर C है वहाँ पर नेगेटिव आएगा. ओके, एवरीवन गेट इट. अब हम देखेंगे इसको, तो जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, सेम यहाँ पर भी यही, बस फर्क कितना है, 1 माइनस का फर्क है.
this will equal to 1 upon 1 plus x square, and this will equal to minus 1 upon 1 plus x square. It will equal to 1 upon modulus x under root x square minus 1. This is equal to 1 upon modulus x under root x square minus 1. तो ये वो फॉर्मूले हैं जब कभी हमको कहीं पर फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा तो हम उसके डिफरेंशिएशन में इनको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन का बहुत सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, मैं आपको आसानी से 3 लाइनों में बता देता हूँ कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बिना सब्स्टिट्यूशन के या पॉसिबल नहीं है या इतना लेंदी है कि हमारा पूरा टाइम उसमें जाने वाला है। सो हमको ज़रूरी है जानना ऐसी चीज़ों को जो हमारे काम को ईजी करें, मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग substitution. I am not going to differentiate any function here, but just I am telling you that how can you use this concept, differentiation or derivative by substitution. Derivative by substitution. सब्स्टिट्यूशन से डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, जो फंक्शन आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। सपोज यू हैव एन फंक्शन विच इज रिटन इन दिस फॉर्म। सो गाइज हियर वी विल पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, or we can also put x is equal to a cos theta. It is very important, it will help you in integration also, so please don't miss all these concepts. इनको ज़रूर पकड़ के रखें क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन में भी मिलने वाले हैं और वहाँ आप यूज़ करने वाले हैं। नाउ इन दिस वे व्हेन यू विल पुट हियर x इज इक्वल टू a sin थीटा और cos थीटा, दिस स्क्वायर रूट बिकेम रिड्यूस एंड देन यू विल गेट अ फंक्शन विच इज फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट एंड ईजिली यू कैन डिफरेंशिएट इट। बट आई एम टेलिंग यू दैट ऑलवेज you will not get the easy type of function. Many time you will get too much complicated function whose differentiation is not easy. In that situation we will use the substitution. The second thing is that सपोज जो आपका फंक्शन है स्टूडेंट, यू हैव फंक्शन विच इज इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन गाइज वी आर गोइंग टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा। इन बोथ सिचुएशन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, इन द थर्ड सिचुएशन सपोज यू हैव एन फंक्शन विच इज इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू ए sec theta or x is equal to a cosec theta. One thing I want to recommend you that you will prefer the first always. आप पहले first को ही prefer करेंगे। ठीक है, okay. Now last is suppose you have a function which is in form of under root a plus x upon a minus x like that. So here student I want to tell you we will use x is equal to a cos 2 थीटा। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास मैंने दे रहा हूँ, वी विल यूज a cos 2 थीटा। इन दैट सिचुएशन तभी हम क्या a को यहाँ से कैंसिल कर पाएंगे दोनों जगहों से। ठीक है, because you know very well that this cos 2 theta have different value. One is 2 cos square theta minus 1 and the second one is 1 minus 2 sin square theta. It is also have the relation between sin and cos both in tan also. So in this way we will use this in numerator and this in denominator, and after that you will get the simplified form of this question. तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो हैं उनके थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम्स क्या कहते हैं हमसे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फंडामेंटल थ्योरम बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बिना उनके तो हमारा कुछ होना ही नहीं है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम्स और यू कैन से व्हाट इज़ द अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के डेरिवेटिव का अलजेब्रा क्या है, लेट्स सी। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी क्योंकि आपने डेरिवेटिव को क्लास 11 से ही समझ के रखा है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल भी समझा है, आपने लिमिट काफ़ी समझ के रखा है। सो दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ वेरी इजी फॉर यू। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यू हैव एन फंक्शन, सपोज यू हैव टू फंक्शन, लेट
fx and gx be any two function. Suppose be any two functions. fx and gx be any two function. First thing, let fx and gx be any two function. Then let's start. You want to find the derivative of this fx plus minus gx. What it will equal? Let's see. This will distribute d by dx of fx and plus minus d by dx of gx. Got it? प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑन दिस. डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, एंड प्लस माइनस बोथ. सो नाउ यू विल डिफरेंशिएट दिस एज साइन एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, and now you can see it will equal to what? Sin means positive cos x and plus minus minus sin x. अब आप यहाँ से थोड़ा सा अपना बेसिक मैथमेटिक्स यूज कीजिएगा. अगर आप यहाँ प्लस यूज कर रहे हो यहाँ पर तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, बट व्हेन यू आर यूजिंग नेगेटिव हियर देन फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज दिस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस. सो इट्स योर ड्यूटी. आपको जो करना होगा आप कीजिएगा, प्लस माइनस दोनों. द सेकंड वन इज दैट सपोज यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्ट रूल. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दीज टू फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, उसको याद कैसे करेंगे? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड प्लस second into differentiation of the first. So in this way you will write first into differentiation of the second, that is gx, and then second plus second into differentiation of first, that is fx. You can apply this any number of time, किसी भी फॉर्मूले पर कितनी भी बार आप उसका यूज कर सकते हैं. And then after this we have one more important formula. You can see this is also very easy and interesting. Like as suppose you have one function d by dx third kfx. Suppose this is the given. Now in this situation we can take out k outside from this bracket and we will apply d by dx on fx. And now you can understand what it will. जो भी फंक्शन होगा डिफरेंशिएट कर लेंगे, आंसर कर देगा, ठीक है. फोर्थ एंड वेरी लास्ट, quotient rule. This is quotient rule, and what it is also very important. Suppose you have the function in this form. Suppose you have a function in this form. So guys, first of all you will write the square of the denominator here. सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे एंड देन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन को डैश से भी लिखते हैं. एफ डैश भी डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है. सो हियर एफ डैश एक्स देन माइनस the numerator and the differentiation of the denominator. It was the algebra of the derivative. So you can say the fundamental theorems on derivative वो जो थे वो सीधे आंसर देंगे, बट ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसको टैकल करने में हेल्प करेंगे. जैसे आपको यही एग्जांपल मैंने लिया था कि sin x प्लस कॉस एक्स, तो sin x cos x का जो फॉर्मूला आपने सीखा वो तो वहाँ यूज़ करेंगे, बट sin x प्लस कॉस एक्स कैसे मैनेज होगा ये यहाँ से पता चलेगा. या मैं लिख दूँ साइन अपान कॉस, या मैं लिख दूँ कुछ भी लिख दूँ, अपान में लिख दूँ, प्रोडक्ट में साइन इंटू कॉस लिख दूँ, या मैं आपको लिख दूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ, ले लेता हूँ, ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा. जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि आपके पास एक फंक्शन है जो ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स. इट इज़ एग्जाम्पल, it is an example. We want to find dy by dx. So what we will do? dy by dx, देखिए प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दिया, समझिएगा कि डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऐसे. अब ये तो यहाँ से पता चला ना, पहले तो नहीं पता था ना, पहले साइन का कॉस पता था, एक्स का 1 पता था, बट ये नहीं पता था. अब देखेंगे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू 1. This is your answer.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस तरीके से आपने डेरिवेटिव के जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक हैं, वो आज के लेक्चर में आपने देख लिया कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल के क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होंगे, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, और हम लोगों को जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव के वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू।